Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, on this platform Darshanik IAS today we are going to discuss one of the essay topic previously asked essay topic by UPSC. So in this essay topic guys, I am going to give you the structure and content of the essay topic. Okay, how you should be framing your essay and exactly what you should be writing. So focus will be largely on the content, what to write in the essay topic. Okay, so today's topic is guys, education without values, as useful as it is, seems rather to make a man more clever devil. ओके, ये 2-3 साल पहले आ चुका है क्वेश्चन, नहीं ये थोड़ा पुराना होगा. सो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रादर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल. अब इस पे बहुत बार एजुकेशन और वैल्यूज, ये बहुत हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, बहुत बार इस पे यूपीएससी ने से पूछे हैं. तो कि सो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज और लैक ऑफ वैल्यूज एंड व्हाट प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट for the humanity, which is already creating a lot of problem, creating devils. So in this essay guys, you can introduce your essay with some anecdote, story, quote, okay, और you can establish जो मैंने पॉइंट आपको पहले ही बताया है मेरे दूसरे रिकॉर्डिंग्स में कि इंट्रोडक्शन में यू ट्राई टू एस्टेब्लिश द ऐसे टॉपिक. तो यहाँ पे एस्टेब्लिश मतलब क्या, दैट दिस इज द कंसर्न इन फ्रंट ऑफ इंडिया नाउ या इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, that education without values is impacting the humanity, impacting the society in a very negative way and creating a clever devils. So here you can use some example of some knowledgeable person misusing his power. Okay, अब ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे. okay, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल में एक जनरल रूल होता है यूपीएससी के एग्जाम का, एग्जाम राइटिंग के गाइडलाइन रिलेटेड, कि जनरली आप पॉजिटिव एग्जाम्पल हो तो जितने ज्यादा लिखो लिखो, उनके नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन निगेटिव कोई एग्जाम्पल यूज कर रहे हो तो किसी का नाम वहां पे यूज मत करना, वो एब्स्ट्रैक्ट मैनर से लिखना. ओके, हाँ, अगर वो बहुत निगेटिवली वेल एस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल है, लाइक प्रूव्ड क्रिमिनल, लाइक दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इस तरह से कोई ये है प्रूव्ड टेररिस्ट अफजल गुरु और सो ऑन, तो चल जाएगा. लेकिन बाकी चीजों में देन इज बेटर कि यू डोंट यूज द नेम. तो एब्स्ट्रैक्ट वे से, so today we in the world we see knowledgeable lawyers defending criminals, okay, doctors involved in organ trade, etc. Then people very well educated IT professionals using their talent to hack or do the online frauds, create ransomwares, etc. And such events that are so much rampant in the society today brings to my mind or brings before us this question, that education without values, as useful as it is, but it is clearly creating a clever devil. अब ये इंट्रो या कोई और भी आपको बेटर किसी का कोई कोट भी आपको पता है वो भी लिख सकते हो आप. और उसके बाद गो इनटू आउटलाइन ऑफ द एसे. अब यहाँ पे फिर आउटलाइन में आप पूरा, मैंने जो आपको बताया कि ऐसे में आगे क्या क्या लिख रहे हो, 70-75 वर्ड में उसकी पूरी आउटलाइन दो. तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, मेजर मेजर डायमेंशन जो आप आगे लिखने वाले हो उनकी हाईलाइट देना, तो आपका ऐसे प्रॉपरली वो स्ट्रक्चर में रहेगा, ऑर्डर में रहेगा. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन एजुकेशन. एजुकेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इट शुड बी डूइंग, एजुकेशन का गोल, अल्टीमेट गोल, एंड और टीलियोस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, इस पे थोड़ी बात करना बात करेंगे. So first वो outline देते वक्त you can write, in this essay we will first discuss the concept of education and its teleos or end goal or purpose. Then we will discuss the concept of values. What do we mean by values, and are there good or bad values that can impact the society and how they impact the society. Then we'll discuss the significance of education being without values, okay, and what problems it is creating in multiple aspects, multiple dimensions. Then in the essay we goes on discussing how we can inculcate these good values and what are the different philosophers' opinion regarding improving our education system with the values, and how we can actually implement in our education system so there won't be only literate people but educated people. तो आप ऐसे में आगे जितनी भी डायमेंशन लिख रहे हो उसका पूरा एक आउटलाइन आपको यहाँ पे देना है. अब उसके बाद यू कैन गो टू मेन बॉडी. सो 150 वर्ड आपके हो गए इंट्रो, और 101 वर्ड हो गए, 150 वर्ड इंट्रो और वो आउटलाइन में. देन गो इनटू मेन बॉडी.
तो पहले डिफाइन, मेन बॉडी में हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करो। तो डिफाइन एजुकेशन एंड इट्स पर्पस। एजुकेशन होता क्या है, इट्स ये पर्पस क्या होता है। यहां पे आप पुट फॉरवर्ड द आइडियाज कि देयर इज अ लिटरेसी इज डिफरेंट देन अ विजडम। ओके, लिटरेसी अलग होता है, विजडम अलग होता है, देन यू कैन एजुकेशन अलग होता है, नॉलेज अलग होता है एंड विजडम अलग होता है। और एजुकेशन इज नॉट जस्ट रीडिंग राइटिंग बट इट्स मच मोर वाइडर कंसेप्ट। तो वहां पे आप ये सारे आइडियाज डिफाइन कर सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड, विजडम क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ IQ, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जितने भी फैसेट्स है एजुकेशन जो करे। ओके, फाइनेंशियल, डिजिटल, वो सिर्फ लिटरेसी का पार्ट हुआ एजुकेशन का। एक ह्यूमैनिटीज का एजुकेशन देना, वैल्यूज का एजुकेशन, तो ओवरऑल एस्पेक्ट एजुकेशन बहुत मल्टी डायमेंशनल वे से 75-80 वर्ड्स में डिफाइन करना। देन डिफाइन वैल्यूज एंड इट्स पर्पस। ओके, तो यहाँ पे डिफाइन वैल्यूज एंड इट्स पर्पस। तो यहाँ पे गाइज यू कैन स्टार्ट डिबेटिंग डिफरेंट पर्पस ऑफ वैल्यूज, जो आपके इथिक्स के पेपर में आप पढ़ते हो, वैल्यूज क्या है। सो वैल्यूज आर, और यहाँ पे आपके लैंग्वेज में मत लिखना वैल्यू, वैल्यूज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ओके, साइकोलॉजिस्ट की। तो जितना ज्यादा आप फिलोसॉफिकल एंगल से लिखो, साइकोलॉजिकल एंगल से लिखो, ज्यादा मार्क्स आपको आएंगे। तो वैल्यूज क्या होता है, ये कोई जनरल कंसेप्ट नहीं है डिफाइन करने का, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड टॉपिक इन साइकोलॉजी। सो वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। ओके, जो बिलीव्स आपकी हैज बिकम कोर पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। व्हेन पर्सन गेट्स डिफाइंड बाय सम एडजेक्टिव, जैसे गांधी सोचते हैं तो नॉन वायलेंस दिमाग में जो आता है, बुद्धा तो एनलाइटनमेंट। ओके, मतलब वो उनकी वैल्यू सिस्टम थी, विच इज वेरी जनरलाइज्ड एंड वेरी स्ट्रांगली रूटेड, दैट यू कांट चेंज इट, और वो बहुत आपके बिहेवियर में हमेशा रिफ्लेक्ट होगी। तो थोड़ा 70-75 वर्ड्स आप इस पे बात करना, वैल्यूज क्या होता है, उसका पर्पस क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। देन एजुकेशन, अब इसके बाद गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर डायरेक्टली जंप करेंगे आंसर राइटिंग में कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज कैसे कैसे बर्बाद कर रहा है, हर जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आप उस पर बहुत कुछ लिखोगे, सॉल्यूशंस में भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखोगे। ओके, और ऐसे एंड करोगे। लेकिन गाइज मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली कि ऐसे का टॉपिक बहुत केयरफुली पढ़ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, ओके, उसका सिग्निफिकेंस, और वो लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज। तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि यस, वो क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इज यूजफुल एज इट इज, बट इट विल ऑल्सो हैज अ डेंजर ऑफ क्रिएटिंग अ डेविल। तो आप सिर्फ एजुकेशन विदाउट वैल्यूज और डेविल पे फोकस करोगे, लेकिन ये एज यूजफुल एज इट इज ये क्यों दिया है, तो उस पे भी थोड़ा लिखना। तो यस गाइज, एजुकेशन टू एन एक्सटेंट नीड्स टू बी विदाउट वैल्यूज। ओके, सो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, व्हाई इज इट यूजफुल। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो एजुकेशन है, यहां पे आपके स्यूडो साइंस का कोई स्कोप नहीं है। ओके, आपके बिलीव्स का, आपके ओपिनियंस का, ओके, आपके बायसेस का। ओके, साइंस में वहां पे सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट है वहां पे बिलीव्स नहीं चलते, आपके ओपिनियंस, आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज नहीं चलती। वहां पे सारी हर कोई चीज होनी चाहिए एक ही वे में, दैट इज रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्चुअल ओरिएंटेशन, क्वांटिफिकेशन। ओके, अनबायस्ड चीजें मैटर करती है। और जैसे जब आप अपने प्रीवियस बायसेस छोड़ोगे और कोई चीज को अप्रोच करोगे, एजुकेशन को अप्रोच करोगे, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। ओके, लेकिन आप पहले ही ये मान रहे हो कि भगवान ने ऐसी ऐसी पृथ्वी बनाई और ऐसे इंसान पैदा किया, then you will never understand or will approach Darwin or will try to understand Darwin with the rationality. Okay, आप पहले मानते हो कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स है और ऐसे हमारी लाइफ को वो गवर्न करते हैं, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड साइकोलॉजी और हाउ दिस हार्मोन्स एंड अदर इश्यूज इम्पैक्ट अस। ओके, आप वही तारों में, सितारों में डूबे रहोगे। सो एजुकेशन के इसमें यू नीड ओके दिस रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। ओके, सिर्फ फैक्ट्स पे मानना, ना कि ओपिनियंस इस तरह से, या आपके अनबायस्ड मेंटालिटी होनी चाहिए, अनबायस्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए। हर चीज क्वांटिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से याद रखूंगा, ये चीजें। तो सो एक वर्ड इसमें लिखना कि यस, टू एन एक्सटेंट वी नीड वैल्यूज विदाउट एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एंड इट इज यूजफुल। इससे एजुकेशन एडवांस्ड होगा, ओके, एजुकेशन की ग्रोथ होगी। लेकिन इसके बहुत सारे डेंजर्स भी है, और वो फिर कोर आर्ग्यूमेंट जो ऐसे का है, ओके, अराउंड 250-300 वर्ड आप वो स्टार्ट कर देना। ओके, सो हाउ एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इज क्रिएटिंग डेविल्स, तो उसके बारे में। अब यहाँ पे बहुत बार अगेन स्टूडेंट्स का जो मेजर प्रॉब्लम होता है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिखते बैठेंगे। गाइस, एग्जाम्पल इज नॉट एसे,
ओके, तो आप ये लॉयर ने ये किया, इस जज ने ऐसा किया, उस डॉक्टर ने ऐसा किया, ये अटैक रैंसमवेयर का हुआ. यस, these are the examples, but use example to support your argument. Don't make examples as your core idea. ओके, इसलिए फिर हाउ एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएटिंग डेविल्स. तो यहाँ पे गाइज मेजर इश्यू है आपका लैक ऑफ कैरेक्टर. तो ये फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट लिखना, इससे कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता. ओके, एजुकेशन में अगर वैल्यूज इनकलकेट ना हो तो वी विल ओनली डेवलप आईक्यू. हम इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका लिटरेसी बढ़ाएंगे. ओके, या नॉलेज बढ़ाएंगे, विजडम नहीं बढ़ाएंगे. ओके, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ये चीजें. अब इसकी वजह से फिर इंपैक्ट कैसे हो रहे हैं, ओके, उसको आप जस्टिफिकेशन में लिखना. तो लैक ऑफ कैरेक्टर, आज जिस तरह से रोल मॉडल बन रहे हैं, ओके, पीपल विथ ओनली मनी नॉट कैरेक्टर, और इसके फिर इनको जो फॉलो करने लगेंगे लोग, वो भी आगे जाके विल क्रिएट द डेंजर्स. जो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर एजुकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस ना इनकल करे, पीपल विल नॉट बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर, दे विल नॉट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स. और अब मैं जो टेक्नोलॉजी बना रहा हूं या कोई भी चीज मैं कर रहा हूं, उसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है जानवरों पे, सोसाइटी पे, दूसरे लोगों पे, एक्सेट्रा, दैट वोंट बी देयर. एजुकेशन में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो, पीपल वोंट बी यूजिंग देयर टैलेंट फॉर अंत्योदय, टू अपलिफ्ट पुअर पीपल, फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल. जो गांधी ने बोला था, यू शुड बी ट्रस्टी ऑफ योर नॉलेज. तो ये चीजें लिखो, और उसके फिर जस्टिफिकेशन में आप वो एग्जांपल लिखना कि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो फिर यहाँ पे जैसे एक पूना में एक इंसिडेंट हुआ, आप उसके बारे में लिख सकते हो. फिर एक एमपीएससी स्टूडेंट जो एग्जाम क्रैक कर चुकी थी, उसके एक फ्रेंड ने whom he proposed her, she refused, और उसने मर्डर किया. तो एजुकेशन में ये लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एजुकेटेड बंदे भी ऐसी चीजें कर रहे हैं मेजरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. फिर सुसाइड्स वगैरह भी उसी का एक रिफ्लेक्शन है. देन इंक्रीज इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट. फिर इस पे बात करो कि एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज ना हो तो फिर आप लोग जो है वो काफी इंडिविजुअलिस्टिक बन रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ नहीं आ रही, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आ रही. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ लोक संग्रह जो भगवत गीता में एडवोकेट किया गया, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे, और इसकी वजह से फिर मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट पे इंपैक्ट हो रहा है, एनिमल लाइफ पे इंपैक्ट हो रहा है, फ्लोरा फाउना जो डिग्रेड हो रहा है, ओके, रैपिड कंज्यूमरिज्म वगैरह, इसका क्या क्या इंपैक्ट. फिर इसके जस्टिफिकेशन में आप कोई एग्जांपल लिख डालो. ओके, तो ये साइकोलॉजी, फिलोसॉफिकल चीजें डिबेट करना गाइज, उसी से ही मार्क आएंगे, रिपीटेड एग्जांपल के बाद एग्जांपल. ओके, तो आप एग्जाम्पल को रात बता रहे हो कि मुझे ऐसे लिखना नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिख दिए. दैट विल गिव यू वेरी बैड impact, or it will create very bad image. Then फिर एजुकेशन विदाउट वैल्यूज हो तो क्या होगा, इनएबिलिटी टू रिकंसाइल इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गुड. एजुकेटेड बंदे लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा मेरा भला क्या और सोसाइटी का भला किसमें. ओके, उनको ये चीज बैलेंस नहीं होती. लोक संग्रह जो भगवत गीता में आइडिया है, ओके, कि दुर्योधन वॉज एजुकेटेड पर्सन, अश्वत्थामा वॉज एजुकेटेड पर्सन, ग्रेट वॉरियर्स, ओके, बट दे कुडंट अंडरस्टैंड उनका गुड इंडिविजुअल और सोसाइटी का गुड, इन दोनों में बैलेंस कैसे कर पाए. तो ये आप एग्जाम्पल में सपोर्ट में लिख सकते हो, वो भगवत गीता के आइडिया भी. फिर गाइज हाउ एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इज इंपैक्टिंग सोसाइटी. तो यहाँ पे अब ये सारा फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट लिखने के बाद आप अलग से फिर इस सारे एग्जाम्पल लिखो. फिर इसके वजह से कैसे कैसे सोसाइटी में फैमिलीज सिस्टम ब्रेकडाउन हो रही है. ओके, एजुकेशन एजुकेटेड लोग ये सारा दूसरे गरीबों को लूटना, या क्राइम, ये जो हाईटेक क्राइम्स है, ओके, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हैकिंग या क्रिएटिंग वानाक्राई रैंसमवेयर जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, इसका एग्जांपल. देन डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रेड, ये इम्पैक्ट है. तो ये सारे, या इंडस्ट्रियलिस्ट एंगेजिंग इन क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सारे एग्जांपल्स आप सारे लिख सकते हो 100-150 वर्ड में, कैसे कैसे डेविल बन रहे. तो एजुकेशन सिस्टम विदाउट वैल्यूज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो कैसे कैसे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पार्ट आपने डिस्कस किया. ओके, अब ये सब डिस्कस करने के बाद, ओके, ऐसे में सॉल्यूशन का पार्ट भी आपको एड्रेस करना है. तो हाउ वैल्यू एजुकेशन विल हेल्प, कि चलो हम तो वैल्यू एजुकेशन दे देंगे, कैसे देना है वो सॉल्यूशन का पार्ट आगे. लेकिन फिर अब ये भी लिखो कि चलो पहले मैंने ये एजुकेशन डिफाइन किया, वैल्यूज डिफाइन किया, ओके, देन एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्यों यूजफुल है डिफाइन किया, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्यों डेंजरस है,
कैसे कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी डिफाइन किया। अभी तक 5 डायमेंशन पे आपने ऐसे लिखा है। अब थोड़ा आगे जाके कि चलो फिर अब हम एजुकेशन विथ वैल्यूज देंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ओके, क्या एजुकेशन विथ वैल्यूज देंगे तो ये डेविल्स बनने से लोगों को हम रोक पाएंगे? ओके, और इफ यस तो कैसे करेंगे? ओके, इस पे रिलेटेड कोई आइडियाज है क्या? सो राइट थिंकर्स आइडियाज ऑन इट कि हाउ एजुकेशन विल हेल्प। तो गांधी का जो आइडिया था दैट इज कैरेक्टर एजुकेशन। ओके, कि एजुकेशन में कैरेक्टर डेवलप करो। ओके, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन, जो गांधी ने एक 7 सोशल सिंस की बात की थी, 7 डेंजर्स टू ह्यूमन वर्च्यूज की बात की थी, या 7 रूट्स ऑफ वायलेंस। ओके, वो तीनों एक ही टॉपिक है। और इसमें गांधी ने जो सिंस की बात की थी, सोशल सिंस, इसमें एक था गांधी का नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कि एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी सिर्फ नॉलेज फोकस करे, कैरेक्टर नहीं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। देन दूसरा सिन था साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। ओके, एंड वेल्थ विदाउट वर्क। अगर ये इथिक्स, ये पैरामीटर हम इनकलकेट कर पाए लोगों में, जनरेशन में, तो दे विल हैव गुड कैरेक्टर, दे विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस विथ ह्यूमैनिटी होगा, एंड वेल्थ विदाउट वर्क नहीं करेंगे। तो ये चीजों पे की आइडियाज, तो ये फिलोसॉफिकल आइडियाज को डिबेट करना। इसके अलावा गाइस विवेकानंद वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, जिन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन का सोल पर्पस इज अ कैरेक्टर बिल्डिंग, क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग, एक्सट्रीमली पैट्रियटिक, नेशनलिस्टिक, जो लोग ह्यूमन सोशल सर्विस के लिए पूरी अपनी जिंदगी डेडिकेट करें, ऐसे कैरेक्टर के लोग पैदा करना। जो एजुकेशन की आइडिया बताई थी विवेकानंद ने, उस पर आप लिखो आत्मशक्ति बढ़ाए एजुकेशन सिस्टम लोगों में, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ओके, उनका जो कोट था, इंडिया नीड नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल ऑफ आयरन। ओके, ऐसे लोग पैदा करना, दैट वाज दिस कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। तो विवेकानंद की आइडिया लिखना। उसके अलावा टैगोर ने भी बहुत बात की थी एजुकेशन पे, बहुत सारे आइडियाज दी थी, क्रिएटिविटी की एजुकेशन वगैरह, ये सारा। उसी में टैगोर ने एक आइडिया ये भी की थी कि एजुकेशन सिस्टम ऐसे एजुकेशन दे कि आगे जाके नेशनल आउटलुक के लोग बने, कॉस्मोपोलिटन एजुकेशन उनको दो, और ये कॉस्मोपोलिटन आउटलुक, नेशनल आउटलुक, एक यूनिवर्सल सिटीजन बने, ऐसे लोग सोसाइटी में पैदा हो। तो ये बहुत स्ट्रांग आइडिया थी उनकी कि एजुकेशन सिस्टम जो वैल्यू लोडेड होना चाहिए। कॉस्मोपोलिटन आउटलुक, नेशनल आउटलुक, मतलब ऐसा आदमी जिसको कास्ट, क्लास, सेक्स, रिलीजन, कंट्री फर्क नहीं पड़ता। इन रोम ही इज लाइक रोमन्स, इन अमेरिका ही इज लाइक अमेरिकन, इन इंडिया ही इज लाइक इंडियन। He respects all diverse cultures, backgrounds, food habits, ethnicity, religion, gods, सबको वो रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह का कॉस्मोपोलिटन आउटलुक, नेशनल आउटलुक का के लोग पैदा करें, यूनिवर्सल सिटीजन पैदा करें, ये एजुकेशन की जो आइडिया थी, बहुत क्लासिक आइडिया, इसके उसको आप मेंशन करना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो बोला था कि फिर एजुकेशन सिस्टम शुड हैव द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजुकेशन, वेस्ट एंड ईस्ट को मिक्स करके काफी अच्छा एजुकेशन हम दे सकते हैं। तो वो वेस्टर्न की जो अच्छी अच्छी आइडियाज है, अभी जो मैंने पहले डिफाइन की थी, ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी, यूनिवर्सल लॉज, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वांटिफिकेशन, ये भी होनी चाहिए। प्लस ईस्टर्न वैल्यूज जो है, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह के आइडियाज, इनको भी डेवलप करना। तो दोनों का राइट सिंथेसिस हो, देन यू विल हैव वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम विथ वैल्यूज, एंड देयर वोंट बी एनी मोर क्लेवर डेविल्स। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी तो लिखना कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर लोगों में आता है, दे विल बी एम्पैथेटिक, दे विल बी सेंसिटिव, दे विल बी कंसिडरेट टुवर्ड्स वीकर और इवन एनिमल, प्लांट लाइफ, फ्लोरा, फाउना। ओके, और एजुकेशन के इसमें फिर ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए एरिस्टोटल का भी एक आइडिया था, हैबिचुएशन, कि एजुकेशन लोगों को हैबिचुएट करवाए, और हैबिचुएशन करवा के, कोई चीज रिपीटेटिवली करवा के, ओके, एजुकेशन सिस्टम वो वैल्यूज उनमें इनकलकेट करे। तो उसका जो कोट था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। ओके, तो वैल्यूज सीखना, वर्च्यू सीखना इज लाइक हॉर्स राइडिंग, रिपीटेटिव प्रैक्टिस। तो एजुकेशन सिस्टम वो करे, जैसे जापान में 4th स्टैंडर्ड तक सिर्फ वैल्यूज इनकलकेट किए जाते हैं, उनको रिपीटेटिवली साफ सफाई करो, सब जो भी लोगों को मिल रहे हो, जापानीज बच्चों को कंपलसरी होता है, उनको ग्रीट करो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, शो योर रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी। तो ऐसी चीजें करवा करवा के ह्यूमिलिटी पैदा करना, रिस्पेक्ट पैदा करना, ये वैल्यूज इनकलकेट करना। तो एरिस्टोटल ने वो एक आइडिया दी थी, हैबिचुएशन कंसेप्ट, उसको लिखो। देन कंडीशनिंग थ्योरीज, बहुत सारे एटीट्यूड के इथिक्स के पेपर में कंडीशनिंग थ्योरीज है, उसके लिए आप मेरे दूसरे लेक्चर्स चेकआउट करना, कुछ मैंने डाले होंगे इस पे, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत सारी कंडीशनिंग थ्योरीज है गाइस आपकी, ऑपरेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग की थ्योरीज, इनका भी एजुकेशन सिस्टम में यूज किया जा सकता है। रोल प्लेइंग, साइको ड्रामा,
ये सारी चीजें है, कॉग्निटिव डिसोनेंस की थीरीज आती है। ओके, इन थीरीज का भी यूज एजुकेशन सिस्टम में किया जा सकता है टू क्रिएट एंड डेवलप द गुड वैल्यूज। लेकिन और एक पॉइंट इसमें एक अभी मेरे दिमाग में आया जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो भी लिखना, एजुकेशन सिस्टम कैन क्रिएट वेरी गुड रोल मॉडल्स, किनकी स्टोरीज आप डाल रहे हो, और वही रोल मॉडल क्रिएट करके वी कैन इनकलकेट वेरी गुड वैल्यूज इन आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये चीजें एजुकेशन रिलेटेड कि एजुकेशन वैल्यू लोडेड कैसा हो, ये आइडियाज उन्होंने दी है। ओके, इनको हमें इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, वो लिखना। देन गाइज, फिर चलो एजुकेशन विथ वैल्यूज क्या क्या होता है, तो ऐसे ऐसे आइडियाज ऑलरेडी आ चुकी है। देन नाउ यू गो इन अहेड इन एसे एंड डिस्कस व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बहुत ड्रॉबैक्स है कि वो सिर्फ जॉब सीकर्स पैदा कर रहा है, जॉब क्रिएटर नहीं, एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं कर रहा, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप सिर्फ इस ऐसे में वैल्यू रिलेटेड ड्रॉबैक्स लिखना इन जनरल। अब इंडिया में एंटरप्रेन्योर क्रिएट नहीं होते, यस इट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन वो इस ऐसे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ओके, सो राइट टू द पॉइंट, जो पूछा है, डोंट राइट कि एजुकेशन सिस्टम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ऐसे इज नॉट ऑन इन जनरल ऑन एजुकेशन सिस्टम, ऐसे इज प्रिसाइजली ऑन एजुकेशन एंड वैल्यूज, तो सिर्फ स्टिक टू दैट एस्पेक्ट ओनली। तो फिर एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओके, टीचर की क्वालिटी खराब है, बहुत सारी चीजें, बट दैट्स नॉट द कोर ऑफ द एसे। तो वही टॉप प्रॉब्लम्स लिखो जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम वैल्यूज पे फोकस नहीं करता, और वैल्यूज पे फोकस नहीं करता का जो मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटीज एजुकेशन। ओके, इथिक्स का पेपर स्टूडेंट यूपीएससी को आने के बाद ही पढ़ते हैं, स्कूल में कभी इथिक्स सब्जेक्ट ही नहीं होता, हमें वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट ही नहीं है सेपरेटली। देयर इज नो फोकस ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट एटसेट्रा, एंड हार्डली देयर इज एनी फोकस ऑन क्रिएटिविटी विच इज ऑल्सो वन वैल्यू। ओके, क्रिएटिविटी एजुकेशन पे तो वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, क्रिएटिविटी एजुकेशन टोटली मिसिंग फ्रॉम इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इस पे बात करना। फिर ये सारा आपने डिफाइन करने के बाद सॉल्यूशंस, हाउ कैन वी इनकलकेट वैल्यूज इन एजुकेशन। ओके, वैल्यू फॉर्मेशन कैसे हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन इनकलकेट दिस वैल्यूज। ओके, तो वैल्यू फॉर्मेशन स्कूलों में कैसे किया जाए, तो वहां पे पूरी चीजें कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स बदलो, रोल मॉडल्स क्रिएट करो, आपका डेली 1 घंटा वैल्यू एजुकेशन का आवर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ड्रामा वगैरह प्ले करके उनकी वैल्यूज डेवलप करो, उनसे कोई एक्टिविटी क्लीनलीनेस वगैरह, ये सोशल वर्क करवाओ उनको 1 घंटे के लिए। ओके, कभी प्लांटेशन ट्री ड्राइव प्रे लेके जाओ, कोई गेस्ट लेक्चर बुलाओ, कोई जो रैशनलिस्ट थिंकर्स होते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उनको बुलाओ, बहुत सारे रिलीजियस लोग होते हैं। ओके, जैसे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, तो ऐसे लोगों को बुला के उनके प्रवचन रखो बच्चों के सामने, कीर्तन वगैरह। तो इस तरह से क्या क्या जितने ज्यादा सॉल्यूशंस। ओके, सी एजुकेशन विथ वैल्यूज क्या कंसेप्ट होता है वो हमने पहले डिफाइन किया। एजुकेशन विथ वैल्यूज मीन्स कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, साइंस विथ ह्यूमैनिटी, वेल नॉलेज विथ कैरेक्टर, कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक डेवलप करना, हैबिचुएशन के आइडियाज वगैरह, ये सब। अब इनको एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट करना, ये सोल्यूशन का पार्ट है। तो एंड में ये दिखाओ कितना आप सोच सकते हो एक्स्ट्रा, और हाउ यू कैन इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम, कि कल आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हो, उस एजुकेशन ऑफिसर हो। ओके, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे एजुकेशन सिस्टम को, ये पार्ट पे आप बहुत स्ट्रांगली एंड में फोकस करना। और ये यहाँ पे 10-15 मार्क एक्स्ट्रा आनी चाहिए, इस तरह से सोल्यूशन लिखना। शो योर क्रिएटिविटी, शो योर आउटकम ऑन दैट। एंड आई गेस मैंने एजुकेशन सिस्टम पे एक लेक्चर अपलोड किया है, वो भी चेकआउट करना। तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें डिबेट की है, तो वहां से आपको कुछ इंसाइट मिल जाएंगे, एंड दे विल बी ऑफ हेल्प फॉर यू। देन गाइस, सफिशिएंट कॉजेस। ओके, अदर देन एजुकेशन व्हाट एल्स कैन शेप द वैल्यूज। तो देर आर नेसेसरी कॉजेस एंड देर आर सफिशिएंट कॉजेस, देर आर टू, मैंने हमेशा बात की है। तो यस गाइज, एजुकेशन सिस्टम तो वैल्यू डेवलप करे और उससे क्लेवर डेविल ना बनने दे, अच्छे लोग बने। लेकिन क्या सिर्फ ये एजुकेशन सिस्टम से ही होगा क्लेवर डेविल का ना बनना? क्योंकि हमने तो 20 साल एजुकेशन सिस्टम में रोज जनगण मन गाया, तो क्या पैट्रियटिज्म आया? हमने इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर 20 साल गाया, ओके, स्कूल में, तो क्या इससे हमारे दिमाग से कास्टिज्म चला गया, इक्वालिटी पैदा हुई? तो इसलिए फिर यस, एजुकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंसी विच हैज इंपॉर्टेंट रोल कि वैल्यूज इनकलकेट करे, बट उतना ही अकेला रोल नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन अकेला नहीं कर सकता। एजुकेशन और वैल्यू इनकलकेट करना एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन दूसरे भी काम है।
एजुकेशन सिस्टम को। तो एजुकेशन सिस्टम के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू टू शेप द वैल्यूज, तो इसमें फिर बाकी बहुत सारी एजेंसीज का रोल है, वो आपको यहां पे लिखना है। तो यस, एजुकेशन इज नेसेसरी कॉज बट नॉट द सफिशियंट। ओके, सफिशियंट बहुत बाकी भी चीजें चाहिए आपको, तो सफिशियंट कौन सी बाकी चीजें, तो यहाँ पे फैमिली का रोल, आपके गवर्नमेंट का रोल, आपके टेक्स्ट बुक्स, रोल मॉडल्स, मीडिया का रोल, इनके बारे में, रिलीजन का रोल, कल्चर का रोल, कम्युनिटी का रोल, बहुत सारे सबके बारे में आप ये लिखो। टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कैसे वैल्यू सिस्टम इनकलकेट कर सकते हो, उसका रोल। तो ये बहुत सारी चीजें यू कैन राइट, ओके, देयर इन 50-100 words, how you can other than education what we need to develop the good values, so clever devils will not create. And then go to the conclusion, okay, that what kind of world will it be after having proper fusion of knowledge with values, IQ with EQ, okay, science with humanity. तो ये जो सारी चीजें हमने डेवलप की है, अब ऐसे सोचो कि सड़क पे चलने वाला हर बंदा, ओके, विवेकानंद जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है, ओके, गांधी जैसा वैल्यू लोडेड है, ओके, बुद्धा जैसा एनलाइटेंड है। ही इज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ नॉलेज विथ वैल्यूज, ओके, उसका सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ा, विजडम भी डेवलप हुआ, ओके, लिटरेसी नहीं बनी, एजुकेशन भी है, IQ EQ है। तो दुनिया कैसे बदलेगी, ये थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ क्रिएट पिक्चर। There won't be any superstition, there won't be any exploitation of the weaker segments, there won't be gender biases, everyone will treat each other with respect, okay, and एक जो सच में स्वर्ग की कल्पना होती है, वैसे लोग होंगे। देयर वोंट बी क्राइम, वायलेंस, रेप, रॉबरीज, ये तो पिक्चराइज एक नॉवेलिस्ट जैसा कि 100 साल बाद किस तरह की दुनिया बदलेगी, एंड व्हाट अ ऑसम वर्ल्ड विल बी एबल टू क्रिएट। तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ आप कंक्लूड कर सकते हो इसको। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन आपके ऐसे की होनी चाहिए। आप इसी आउटलाइन को यूज करके अपना खुद का एंड कंटेंट ऐड करके यू कैन ट्राई टू मेक द एसे बेटर एंड प्रैक्टिस दिस एसे। तो अभी मेरा पर्पज यही कि मैं ऐसे कुछ ऐसे अपलोड करके विल गिव यू दिस इनसाइट, तो आप उसी फ्रेमवर्क को यूज करके ट्राई राइटिंग मोर ऐसे एंड मेक इट बेटर। So thanks for listening, guys. So do share this YouTube channel with your friends who are interested and help me grow. So thanks for listening, guys, and see you in the next lecture.